We have with us Ayushmann Khurrana and Jeetu. Their film is coming up, Shubh Mangal Zyada Savdhan. The promo is amazing. I'm personally looking forward to the film, and it's a very important film as well for India at a very crucial time. Pleasure having you guys on board, Rangama. Thank you, sir. All right, so how important is it for you to say what you want to say? Because it's meant to be said. Of course, through our film, we are making a statement that this is 2020 and it's about human rights also at the same time. अगर दो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, चाहे किसी भी ओरिएंटेशन के हों, they should be allowed and allow कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन of course homophobia still exists in our country and to counter that we have come up with this film Shubh Mangal Zyada Savdhan. I think actors, they tend to promote their films. They should promote their films. They come up with interesting and innovative ways as well. Yeah. But अगर उसमें कुछ एक certain एक सच्चाई होती है तो वो attract करता है. It has an attractive factor. For 26 January, you came up with that picture of a tiranga in one hand and a flag for gay pride community. So I found that fascinating. To do that with that much amount of honesty. And as you've said in one of our past interviews, that for you say it through your films. Yeah. Rather than making all those naras, you say it through your films. Why was that important for you? That to use, in a way, 26 January's occasion, people have a lot of opinions, but you're having a certain say of your own. January is a time when you are supposed to feel proud of your country, and this was one of the reasons कि हम आज थोड़े proud हैं, क्योंकि at least उन्होंने same sex relationships को validation दी है. That was a perfect platform to use gay pride community, LGBTQ community का flag along with India's tricolor. So I think that's why the moment was apt, and that was the moment of pride also for us. We have someone like Ellen DeGeneres and Portia, so they can openly talk about the fact that they are married. Do you see that happening in India? लोग बात तो करने लगे, मिडिल क्लास फैमिली में भी अपने मम्मी पापा को बताने लगे कि हमारा ओरिएंटेशन ये है, सेक्सुअली हम होमोसेक्सुअल हैं. मेन प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स और सोसाइटी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाती है विद देयर चिल्ड्रन. तो आई थिंक वो अभी शायद होने लगे, वो लोग एक्सेप्ट करने लगे इस चीज़ को. और फिल्म में जो हमने काफ़ी सारी बातें की हैं, ये प्यार नॉर्मल है, आई थिंक वो एक बार सुनने को मिले लोगों को. आई थिंक जहाँ से मैं हूँ वहाँ तो शायद काफ़ी लोगों को ये पता चलेगा कि वो ये ओरिएंटेशन भी है, ठीक है, लोग होमोसेक्सुअल भी हो सकते हैं. तो आई थिंक मैं तो ये बताने के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड उन लोगों की, हाँ एक ऐसी चीज़ भी होती है. आई थिंक एक बार सुन ले लोग कि ये नेचुरल है, अगर दो लोगों में प्यार है और वो लोग किसी भी जेंडर से हैं, और तो ये जायज़ है. ये एक बार बात पड़े उनके कानों में, ताकि वो अपने बच्चों को एटलीस्ट एक मौका तो दें सुनने का कि उनकी बात क्या है. तो आई थिंक होगा चेंज. In our country, a lot of people think that it's abnormal, it's unnatural. ये ऊपर वाले ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता. तो ये सब कुछ हमें खत्म करना है इस फिल्म के जरिए. ये बताना कि ये नेचुरल है. मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपने एक दिन सुबह उठे आपको नहीं अब मैं आज गे हूँ. ऐसा नहीं होता. ये born like that. जैसे अगर हम कहें कि हम क्या कपड़े पहनते हैं, हमारा क्या मजहब है, हम क्या खाते हैं, या फिर हम बेडरूम में अपने क्या करते हैं, that's entirely none of anyone else's business. Yeah. How important is that for you? You're absolutely right. मतलब हमारी अपनी चॉइस है, जो हम करना चाहते हैं वो करना चाहिए हमें. ऑफ कोर्स एक मापदंड होना चाहिए कि आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं या कुछ वो नहीं कर रहे हैं. लेकिन ये होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज किया हुआ था, इसको क्राइम समझा जाता था, जो अब डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, विच इज़ ग्रेट, विच इज़ वेरी प्रोग्रेसिव एज पार्ट ऑफ अ नेशन. और वो जो भी दो लोग करते हैं, लड़का लड़का या लड़की लड़की या लड़का लड़की अपने बेडरूम में बंद कमरे में, उस पर आपको कोई लेना देना नहीं है. As I was talking to you a short while back, you guys have a kissing scene in the film. Did you guys prepare for it? Was there any workshop for that? Did you have apprehension? वर्कशॉप तो कुछ नहीं हुई हमारी, लेकिन यही है. जीतू से मैंने पहले पूछा था एक बार कि तुम पहले ऐसा कर चुके हो क्या, मतलब किसी लड़के को किस कर चुके हो, तो इसका जवाब था हाँ. और वो वाकया में बताएगा जीतू. अपने बेसिकली कॉलेज में हम लोगों की रैगिंग होती थी, तो उसमें सीनियर्स बोलते थे कि हाँ ऐसा तुम दोनों किस करो, और बहुत अलग अलग क्रिएटिव केसेस होते थे. तो वो मैं किया हुआ था, लाइक बहुत अलग अलग तरीके के स्मोकिंग के तो आई थिंक हाँ मैंने ये सारे केसेस किए होते. फिर मैंने इनको पूछा कि आपने कभी ऐसा किया हुआ है, तो इनका जवाब था हाँ, क्योंकि रोडीज के टाइम पे हमने ना बिहाइंड द सीन एक ट्रूथ एंड डेयर किया था. अच्छा. तो डेयर मिला था तो मैंने कर दिया. तो मुझे ये इस फिल्म के जरिए में ये बताना है कि ये सब कुछ नॉर्मलाइज करना है. मैं ड्रीम गर्ल की शूट कर रहा था और वी वर शूटिंग इन सम मॉल इन बॉम्बे. तो पार्किंग में ना आई सॉ 2 guys किसिंग. तो मैंने रियलाइज किया कि यार ये तो इंडिया इज रेडी फॉर इट. लाइक इफ यू सी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन बिटवीन सेम जेंडर, जो नॉर्मली देखा नहीं जाता है, अगर मैंने वो देख लिया, मुझे लगा कि इंडिया इस कहानी के लिए तैयार है. और इट्स हाई टाइम, इट्स 2020 एज आई सेड.
और मुझे लगता है एज एन एक्टर आपको किसी भी तरह के रोल के लिए तैयार होना चाहिए, आपकी कोई भी ओरिएंटेशन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये कोई आपसे सवाल क्यों नहीं पूछता कि आपको हीरोइन को किस करके कैसा लगा। अब आप हमसे पूछ रहे कि इसको लड़के को किस करके कैसा लगा। अब हम चाहते हैं मैंने ये नहीं पूछा आपसे कैसा नहीं, लगा? मतलब कैसे प्रिपेयर किया, वर्कशॉप वगैरह किया। हाँ। Yeah, that's what I'm asking you because हाँ. I don't think that you've done this on screen before. Yeah, of course. So it may be something that you would have want to be better prepared for. That's exactly my question is that. प्रिपेयर तो मतलब आप एज एन एक्टर किसी भी चीज के लिए आपको होना चाहिए। अगेन मतलब वही था कि किस कर रहे हैं तो मतलब लोग ज्यादा लोग देखेंगे और सेट पे ज्यादा लोग होंगे, तो वो वाले थे हमारे प्रियंसन की बहुत ज्यादा लोग ना देखें, तो उसके लिए पूरा मतलब कम लोगों के बीच में वो ऑफ कोर्स सिंस ये शायद पहली बार ऑन स्क्रीन हो रहा है कमर्शियल फिल्म में, तो सारे क्रू को निकाल दिया गया था। अक्सर किसिंग सीन में भी ऐसे ही होता है। हाँ। नॉर्मली किसिंग सीन जब लड़का लड़की का भी होता है तो सब क्रू बहुत मिनिमल हो जाता है। यहाँ पे भी वही सेम प्रोसीजर फॉलो किया गया था। बस हमने बस यही है कि नॉर्मली एडीज क्या करते हैं कि आपको करके दिखाते हैं सीन, लाइंस बोलकर दिखाते हैं हर एक सीन से पहले कि ये लाइन बोला या आप ये करोगे। हमने बोला एडीज आप किस भी करके दिखाओ। अच्छा। तो मजाक में हम वैसे उनकी फिरकी ले रहे थे, लेकिन having said that, it's very important to normalize it. ये जरूरी है इस फिल्म के It's जरिए important to करना। normalize that. Yeah, yeah. हाँ, जैसे बचपन में मुझे जब पता चला था इस चीज के बारे में कि गे नाम की कोई चीज होती तो ऐसे पता चला था कि वो गे है, लाइक इट वाज लाइक अ गाली। हाँ। तो मुझे मैं चाहता हूँ कि जब अब ये बच्चे सुने स्कूल में, जब पहली बार उनको पता चले, वो जब वो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो उनको ये चीजें एक अच्छे तरीके से पता चले कि एक ये भी चीज होती है कि ये भी दो तरह की। हमारी सोसाइटी बहुत इवॉल्व हो गई है सर। मतलब आई रिमेम्बर बैक इन द डे इन कॉलेज आई वाज इनवाइटेड बाय गे क्लब ऑफ कॉलेज। आई वाज इन ऑल बॉयज कॉलेज। तो मैं गया ही नहीं उनके पास। मैंने कहा नहीं, मैं अनकंफर्टेबल, मैं नहीं आ सकता। वो समय अलग था, 2005 या 6 की बात मैं कर रहा हूँ। एंड आई वाज बॉर्डरलाइन होमोफोबिक कि मैं इस चीज़ों से कतराता हूँ। मैं शायद मुझे लगता है कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आती थी उनसे। लेकिन हमारी सोसाइटी इवॉल्व हो गई, अवेयरनेस बढ़ गई है। अब जहाँ अगर मैं कन्वर्ट हो गया हूँ फ्रॉम बीइंग अ बॉर्डरलाइन होमोफोबिक टू समबडी हु इज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन एंड ऑल्सो फ्लैग बियरर ऑफ LGBTQ कम्युनिटी नाउ, तो मैं चाहता हूँ वो लोग भी ऐसे ही ट्रांसफॉर्म हो जो अभी हमारे B या C सेंटर्स में हैं या फिर अर्बन सेंटर्स में भी हैं जो होमोफोबिक हैं। अगर मैं चेंज हो सकता हूँ तो वो भी चेंज हो सकते हैं। तो ये फिल्म के जरिए हम वो करना चाहते हैं। But do you see, as I asked him, that someone like Ellen DeGeneres and Portia, they can openly talk about the fact that they are married to each other. Do you see that happening in India? Do you see that we are that evolved yet? अभी इतने इवॉल्व नहीं हुए हैं, पर आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज कि एटलीस्ट डिक्रिमिनलाइज कर दिया है सेम सेक्स रिलेशनशिप को। आगे मैं चाहता हूँ कि सेम सेक्स मैरिज भी हो, मतलब जो करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो सिविल राइट्स मिल नहीं पाते हैं इसके जरिए। मतलब अगर आप एज अ कपल साथ में हैं तो उनके जाने के बाद आपको उनकी प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगी क्योंकि आप मैरिड नहीं हैं, कोई लीगल वो ही नहीं है, सैंक्टिटी नहीं है। सो आई गेस वो सिविल राइट्स जो है उसकी प्रॉब्लम्स हैं अभी इंडिया में। ओके, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी कि, और जैसे आपने नॉर्मलाइज करने की बात करी जी, कुछ चीज़ें गलत तरीके से नॉर्मलाइज हो जाती हैं जो कि शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि नॉर्मलाइज होना चाहिए जैसे आपने कहा वो भी इंपॉर्टेंट है, द वे यू सेड। सो वन थिंग दैट यू ट्राइड टू नॉर्मलाइज बोथ ऑफ यू इज दैट वो जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं गेज के, होमोसेक्सुअल्स के हिंदी फिल्म्स में, कि वो एक एफेमिनेट बॉडी लैंग्वेज होएगा और उसके बाद फिर वो यूं होएगा, एंड certain fixation with the posterior, which is I think vulgar. It's nothing cool about it. Maybe some people laugh at it, but it's not funny. So वो जो आप लोगों ने normalize करने की कोशिश की, that they are regular people. You don't have to have a body language if you are gay or anything of that sort. Both of you. How important was that for you? नहीं, आई थिंक उसका ध्यान पूरा स्क्रिप्ट में और डायरेक्टर ने रखा है कि जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो नॉर्मल दो लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो सेक्सुअली होमोसेक्सुअल हैं। कभी भी मेरा वैसा था कि अगर मैं कोई भी कैरेक्टर अगर गे कैरेक्टर में करने वाला हूँ तो वो सब जो पहले हमने देखा है, जो जिनको फनी तरीके से दिखाया गया है, जिनको क्लीशे तरीके से दिखाया गया है, वो ना हो स्क्रिप्ट में। तो आई थिंक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था मेरे लिए स्क्रिप्ट में कि कैरेक्टर उस तरीके से लिखा गया है। आई थिंक हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त है वो साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गया था और उसने मुझे 4 साल पहले बताया कि आई हैव कम आउट ऑफ द क्लोजेट, आई एम होमोसेक्सुअल। मुझे पहले नहीं पता था, वाज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। तो वो कहता था इंडिया में मुझे फैमिली से डर लगता था, ऑफिस में लोग बुली करते थे क्योंकि मैं थोड़ा सा फेमिनेट था, और मैं अपने आप को ना मैस्कुलिन बनाने के चक्कर में, मैं अपनी जो वो एक नेचुरल स्ट्रीक है उसके अंदर, उसको कर्ब करते हुए वो दुनिया के सामने आता था। स्कूल के टाइम से उसका चल रहा है। कहता यहाँ आई कैन बी माई सेल्फ, साउथ अफ्रीका में मैं बाहर हूँ, आई एम माई सेल्फ, आई हैव कम आउट ऑफ माई क्लोजेट, एंड अब ये मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ जैसा मैं हूँ।
तो आप जो बात कर रहे हैं वो कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। कुछ होमोसेक्सुअल्स होते हैं फेमिनेट, कुछ नहीं होते हैं, कुछ क्राउड में मिंगल होते हैं, आपको समझ भी नहीं आएगा कि उनको देख कर नहीं पता लगेगा कि वो होमोसेक्सुअल्स हैं या नहीं है। आपको ये भी समझ नहीं आएगा हु इज द गाय इन द रिलेशनशिप, हु इज द गर्ल इन द, आपको वो भी समझ नहीं आएगा कौन वर्सेटाइल है, उनकी दुनिया अलग है। वो आप शायद वो कई लोग नॉर्मली उससे वाकिफ भी नहीं है। तो इस फिल्म के थ्रू हमने कुछ स्टीरियोटाइप ब्रेक किए हैं। पहली बात तो ये हमने कोशिश की है कि परिवार के साथ जो लड़ाई है वो सबसे बड़ी होती है, कि आपके फैमिली को आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है। ही इज द वन हु इज प्लेइंग अ विक्टिम इन द फिल्म, क्योंकि मैं पहले बहुत विक्टिम प्ले कर चुका हूँ फिल्म के अंदर, तो मैं आई एम द इंस्टिगेटर इन द फिल्म, कि आई एम अनअबैशड अबाउट इट, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं होमोसेक्सुअल हूँ और मैं तेरी लड़ाई में तेरा साथ दूंगा अपने परिवार के साथ। We have, it's a quiz. I'll give out a question to you. There are no options in that. Yeah. If you get it, the moment the question is finished, you can go for the answer. If you get it without any option, Yeah. you get 3 points. If you want one hint, so if you get it after one hint, Yeah. you get 2 points. If you get it after the second hint, you get 1 point. And you can win a very fine Bluetooth speaker for this. So Wow. it's worth fighting for. आप लोगों का मोहब्बत है on screen, but हम चाहेंगे कि आप लोग compete करें. चॉकलेट साइज स्पीकर। It's worth it. Trust me, it's worth it. People have fought for it like really, really hard. The first question is, in film My Brother Nikhil, who played the role of Sanjay, that is Nikhil's elder sister, named Anamika? सीन है? देखिए याद देखिए सुने? देखिए याद नहीं। मुझे भी याद नहीं। You don't know? No. The first hint is she is co-owner of one of the IPL teams. जूही चावला? He's right. Yeah. 2 points. Yeah. 2010 film I Am consists of 4 short films, of which Omar dealt with gay rights. Who played the role of Omar in it? ऑनर ने की थी ना ये डायरेक्ट? Yes. संजय सूरी? No. नो? I'll give you a hint. Yeah. He played Malika Sherawat's husband in Pyar Ke Side Effects. राहुल बोस। I think both of you said together, but who was first? इसको दे दो, इट्स ओके। I felt that Jeetu was first. मुझे ऐसा लगा. So it's like 2-2. Yeah. It is really heating up. That's wonderful. Identify this film in which Randeep Hooda and Saqib Salim played a gay couple. शॉर्ट फिल्म बाय करण जौहर। 4 शॉर्ट फिल्म थी। Right. बॉम्बे डायरीज नो? बॉम्बे टॉकीज। He got it. So he gets 3 points for this. ठीक। He got 3 points for this with a little bit of help from Jeetu. जो लोग देख So रहे हैं it's ना मारेंगे बॉम्बे टॉकीज कैसे नहीं आया? It's 5-2. Margarita with a Straw is story of an Indian teenager with cerebral palsy Yeah. who comes of age following her complex relationship with a blind girl. Yeah. Played by Shawnee Gupta. Yeah. Who was the director? I don't know the director, but yeah, I've seen the film. I watched this film, of course. Both were so good, like Shawnee and Kalki. Yeah. Should I give you a hint? Yeah. She had directed the film Amu starring Konkana Sen Sharma. I've not seen that film. One more hint. She recently directed The Sky is Pink starring Farhan and Priyanka. मैंने इन दोनों फिल्में नहीं देखी। नो आइडिया। सर ये हम पास। Shonali Bose. So it's still 5-2. Yeah. In film Fashion, there was a gay couple played by 2 talented actors. One was Ashwin Mushran. Who was the other? हर्ष छाया। No. No? नहीं उसका नाम तो याद नहीं है। You want a hint? Yeah. हाँ। He was one of Amitabh Bachchan's sons in film Baghban. अमन सॉरी अमन वर्मा? अमन वर्मा। No. Okay, he was in China Gate also. नीलम's husband. Name. He's giving all the hints to him. नीलम's husband. Do you know the name? First letter किससे? S. समीर Sorry, Sony. Yeah, he got it. This is like collaboration going on. अरे वो collaboration फिल्म के अंदर बहुत solid है। 7-2. The film revolves around a dysfunctional family of 2 brothers. This is very easy. Who visit their family and discover that their parents' marriage is on the verge of collapse. The family is undergoing a financial crunch and much more as the drama unfolds. Name the actor who played gay in this film. Fahad Khan. Who said it first? I said Jeetu. 7-5. In the film Bombay Talkies, Randeep Hooda played a role of a gay man. Who played the role of his wife? रानी मुखर्जी। He got it. So I think he definitely knows much more about films. वैसे सच बताएं इतनी फिल्में देखते भी नहीं हम। Jeetu, if you can please hand it over to Ayushman. मैं रख लूं? I think I will dedicate this speaker to my co-actor Jeetu.
जिन्होंने मेरे को हेल्प की आंसर्स बताने में। कपूर एंड सन्स ने मेरे को प्रॉम्प्ट ही कर दिया। मैंने कहा भाई कंपटीशन है ये। बॉलीवुड हंगामा, थैंक यू सो मच, दिस मीन्स अ लॉट टू मी। मेरा लाइफ का पहला इंटरव्यू फरीदुन भाई के साथ था, विक्की डोनर के तुरंत बाद, और अभी ये इंटरव्यू हुआ है। सो आई हैव कम अ लॉन्ग वे, यू हैव सीन माई जर्नी एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये स्पीकर जो है, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट माई जर्नी। थैंक यू। So rapid fire with Ayushman Khurrana. When someone says मेरी बड़ी हो गई है, what three things immediately come to your mind apart from पुतलियां? एक ही चीज आती है दिमाग में। थ्री मतलब क्या हुआ? That's why it's a laugh trap in the promo. आप एक ही बता दीजिए apart from पुतलियां. In the film we have not used this, but of course वो लोग सोचेंगे शायद they're talking about dick, है ना? Yeah. Alright. So और you're दूसरी तीसरी चीज I don't know. और क्या? और कुछ बड़ा होता नहीं है। मतलब सोच बड़ी हो गई थी। सोच बड़ी होगी। बड़ी हो गई थी सोच। एक सही है। एक सही है ना? एक काफी है। तो एक फिर काफी of course आपको एक- वही सुनना था। एक काफी है। बाकी सब बेमाने। When was the first time and for what someone asked you, बेटा मम्मी पापा का पता है वैसे? मम्मी पापा को पता है वैसे? वो था Yeah. फर्स्ट टाइम। Yeah. आई रिमेंबर दैट क्लियरली। पहली बार जब मैं डेट पे गया था अपनी पहली गर्लफ्रेंड के साथ, और उसके पेरेंट्स ने पकड़ लिया था। उन्होंने मुझे बताया, बेटा मम्मी पापा को पता है वैसे? मेरी फट गई थी, लेकिन नहीं अंकल नहीं पता। सो आई वाज लाइक 16 दैट टाइम, 15 मे बी 15। If Karthik Singh stuck in an elevator with Vicky Dona, what would they talk about? दे विल टॉक अबाउट डोनेशंस ऑफ वेरियस काइंड्स। अब तो जरूरत भी पड़ेगी। जरूरत कैसे? मतलब हाँ, ऑफ कोर्स कार्तिक इज हाँ, गे, तो वो विकी डोनर से बहुत जो फ्लर्ट करेगा, ऑफ कोर्स बहुत ही he'll be very happy। कार्तिक will be very very happy। Karthik will be विक्की का पता नहीं, विक्की तो स्ट्रेट है तो इसलिए। Okay, होमोफोबिया या बिगेट्री, कौन सी बीमारी ज्यादा बड़ी और बुरी है? दोनों ही बीमारियां बहुत ही बड़ी और बहुत ही बुरी हैं, और दोनों को हमारे देश से बाहर जाना चाहिए। One thing about Jeetu that can make even a straight guy fall for him. His silent charm। His silent charm. Yeah। In trailer you say, सुहाग रात से तेरा रोडीज शुरू हो जाएगा, कर पाएगा टास्क। इस रोडीज का सबसे हार्ड टास्क कौन सा होगा? यही कि आप बीइंग होमोसेक्सुअल, आपको स्ट्रेट बनने का एक नाटक करना पड़ेगा। सबसे बड़ा टास्क तो वही होगा। लाइक you're not being yourself, that's the biggest task। At gunpoint, if you're forced to have a gay encounter, who would you prefer it to be? रणवीर सिंह। Ranveer Singh. Why is that? पता नहीं, कल हमारे शूट पे वो आया था, मेरी गोद में आके बैठ गया था। अरे देखा था। And he kisses and all that as well. Yeah. like, Yeah. very and hugs and kisses. Yeah, and all yeah. that. Okay. Everything was happening. If you were given the task to break the internet, what would you post? बहुत कुछ है पोस्ट करने के लिए वैसे तो मन की काफी बात ऐसे है। कंट्रोल करके चलते हो आप। बहुत ज्यादा कंट्रोल करके चलना पड़ता है। क्या ऐसा होता है करें? कि आप लिखते हो फिर डिलीट कर देते हो। बहुत बार ऐसा हुआ। आजकल तो रोज हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ। So what would you post? Anything that comes to your mind? नहीं, वो नहीं बता सकते, पोस्ट ही कर दूंगा नहीं तो मैं। But I think आप अपने कविताएं कुछ थोड़ा सा कम हुआ आपका कविताएं, पहले के कंपैरिजन। हाँ कविता कम हुई क्योंकि ऑफ कोर्स ये प्रमोशन चल रही थी, टाइम नहीं मिल रहा लिखने का। लेकिन मैं जुटा रहा हूँ कुछ, अगर किताब आगे लिखनी पड़े तो फिर। According to you, what three things make a girl look hot? 3 things। क्यों हंस रहे हो तू? Okay, I think intelligence. I have a thing for cleanliness, so clean hands and feet. And third would be like same taste in art, music, and same thought process basically. मतलब अलग भी हो तो मतलब if intelligence can tackle that, then definitely why not? So these 3 things maybe. When you are old, what do you think children will ask you to tell stories about? About my childhood maybe, कि कितना different हुआ करता था उस टाइम पे। Because things have changed so much. हमारे modes of entertainment बदल गए हैं सबकी। I remember, I think there's more distance between kids and parents these days because हम एक चीज बैठकर देखते नहीं है। वो अपना कुछ देख रहे हैं, हम अपना कुछ देख रहे हैं। हम सब बचपन में चित्रहार देखते थे, एक ही शो देखते थे, वही न्यूज़ देखते थे। That's why we had some semblance with our parents, और कुछ ना कुछ तो सेम होता था। आज डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गया है because modes of entertainment have changed. So maybe you can make a film on something like this? Definitely. On this subject, Of this course. distance? हो Okay. सकता है। Do you think revoking Section 377 can be misused? Anything can be misused. Of course, why not? हो सकता है। लेकिन 377 के हटाने के फायदे ज़्यादा हैं, ये मानता हूँ। Article 15 is more relevant in India today than when you made it. आर्टिकल 15 was always relevant और आगे भी relevant होता रहेगा। आज के टाइम पे of course relevant है, definitely relevant। Have you ever doubted your heterosexuality? No,
Have you ever been proposed by a boy? Yes. इस फिल्म के वजह ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा शायद. We'll become gay icons now and we're proud of it. Which celebrity you were most nervous to kiss on screen apart from Jeetu? First kiss, यामी. यामी. पहली फिल्म थी. पहली फिल्म और पहली किस थी, पता नहीं था क्या हो रहा है. At what age did you watch porn film for the first time? 15. What thing about a girl can turn you on? सर बोल तो दिया, तीन चीजें बोली थी मैंने आपको, इंटेलिजेंस वो. नहीं, वो क्वेश्चन कुछ और था. It's the same thing. Attraction. 3 things that make a girl look hot. Turn you on hot, sir. दोनों सेम ही चीज है. Almost same chapter है. Your favorite cuss word? I think we unintentionally fuck बोल देते हैं, तो फेवरेट तो क्या होता है सर? नहीं लेकिन होता है. आप कैसे कह सकते हो? कुछ Favorite लोगों को- तो नहीं, मतलब- बहुत से लोगों का होता है कि you know matter of factly वो तकिया कलाम के तरीके से यूज करते हैं, तो होता है. Yeah, fuck बात is- करने में मतलब fuck ये है has कि वो- become part of a colloquial lingo. All right, okay. A song that you like to sing in the shower? I'm not a bathroom singer. So I don't sing in shower. Actually मैं गाना नहीं गाता हूँ सर. नहाते में उसमें गाना नहीं गाता हूँ, गाने सुनता हूँ. So I take my speaker inside, so I just listen to good music. Maybe this one? Of course. The speaker? ये Okay. तो ऐसा लगता है कि खुद साबुन है. You're not the first one to say that. Guess who says that? Akshay Kumar. What are you the saying? guy who's AKA. sharing with whom you're sharing the similar sort of trajectory. Yeah. Okay, one book that you're reading currently. I finished one book called Lie With Me by Philip Besson. It's story of two gay boys. तो मैं वो पढ़ रहा था फिल्म के दौरान. Something about you that not many people know. बहुत सारी चीजें सर, ऐसे तो मतलब Anything that अब comes to सब your कुछ आप बता दोगे तो फिर दुनिया बर्बाद हो जाएगी. Mystery कैसे रहेगी? हाँ? Mystery कैसे Mystery रहेगी? कैसे रहेगी? हाँ. But anything that you can share with maybe your fans. It's very intimate, but I can share. Like मेरे phases होते हैं. Like I'm a very boxer person, but I started wearing briefs these days. So yeah. Rapid fire with Jeetu now. How many retakes did you take to kiss Ayushmann on screen? 3. Yeah. लड़की में क्या देख के आपकी आंखों की पुतली बड़ी हो जाती है? Height. 3 things about Ayushmann that can make even a straight guy fall for him. Sense of music, मतलब in the taste in music, maybe. One thing. Of course, looks and hair. You think that okay. These are like natural dense hair. What's the toughest thing about playing gay on screen? I think that trait I was looking for कि क्या अलग होता है, but वो मुझे मिला ही नहीं. Actually मैंने काफ़ी लोगों से भी बात की, मेरे कुछ दोस्त हैं जो गेज हैं, ऐसी कुछ अलग चीज़ मुझे मिली नहीं उनमें. मैं वो सोच रहा था कि कुछ ऐसा फिजिकली कुछ चेंज मतलब होता है क्या लोगों में, वो मुझे मिला नहीं. उसके लिए देख रहा था कि अगर मैं कुछ अपनी बॉडी में फिजिकली या जेस्चर वाइज कुछ चेंज कर सकूं, बट ऐसा होता नहीं है, वो लोग नॉर्मल होते हैं. तो आई थिंक वही एक चैलेंज बन गया था कि नॉर्मल भी रहो और अलग भी दिखो. तो दैट वाज द चैलेंज. But I think you're looking very good in the promos at Thank least. you. If Karthik and Aman meet Sameer, Abhishek Bachchan and Kunal, John Abraham from Dostana, what would they talk about? दिल टॉक आउट कि लड़कियों के साथ कैसा रहता है. जो जनरली लोग जो गेज लोग होते हैं ना, उनसे पूछते हैं ना कि कैसा रहता है यार तुम दोनों के बीच में, क्या होता है. क्या बात है, क्या बात है. जीतू, क्या बात है. ऑपोजिट थिंग. Superb. लड़कियों के साथ कैसा रहता है. If you could lock up one character of Shubh Mangal Zyada Savdhan in a mental institution, who would it be? I think father Gajraj Rao. He is most like homophobic. I don't know why. So I think he's the most homophobic in the film. Yeah. The It's very funny that ये हाँ, Supreme father, Court वो पटाखे हमारे आंगन में. उनको थोड़ी देर के लिए मन करता है कि तुम बस बंद हो जाओ थोड़ी देर के लिए प्लीज. Do you sit with the writers and do you discuss that about the writing part in a way? Do you have any Of course, inputs? inputs तो होते हैं. Definitely. If you could change one thing about your upbringing, what would it be? नथिंग. What is the stupidest thing you've done because someone dared you to? एक बार हम लोग बैठ के कहीं मतलब किसी बार में हम लोग डिनर कर रहे थे और वहाँ पे 2 लड़कों ने सेम टी शर्ट पहनी हुई थी, 2 अलग अलग, और हम लोग थोड़े से ड्रंक थे. तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि जाके बोल के आ कि आप लोगों ने सेम शर्ट पहन रखी है, शर्म नहीं आ रही ऐसा कुछ, और मैं बोल के आ गया दोनों को. क्या हुआ था? कुछ नहीं, फिर उन लोगों को चमक गया था कि ट्रूथ एंड डेयर चल रहा है इनका, तो उन लोगों ने ज़्यादा कुछ बोले नहीं, थोड़े से एम्बैरेस हुए वो. Realizing that your wife is a lesbian or realizing that your wife is bisexual, which will be less harrowing for you? लेस्बियन इज लेसर. Really? हाँ. Bisexual?
तुम मतलब बहुत ज्यादा चीटेड, बहुत अलग variant में मैं चीटेड फील करूंगा। अच्छा, तो तू इतना पोजेसिव कि अगर लड़की के साथ भी वो करे तो यू फील चीटेड। हाँ ऐसा क्या? हाँ हाँ दैट्स सो पोजेसिव है। हाँ, of course. I think what he's saying is very interesting. What Actually he's very saying is, interesting, yeah. is very interesting, yeah. And that he's in the reckoning. I was expecting the other answer कि maybe bisexual is fine. Right. Even I was thinking. Like she was going against her will only. सोच with you. क्या कभी आप पे किसी को ऐसा शक हुआ है कि आप गे हैं? हाँ मतलब काफी बार। ऐसा कैसे? हाँ मतलब हाँ स्टोरीज है, सुनाओ। ऐसा क्या किया होगा? हाँ प्लीज सुनाओ। कुछ नहीं है, ऐसा मैं जॉब कर रहा था बैंगलोर में, सो उधर एक HR का जो बंदा था, आई थिंक ही वाज गे आई थिंक, और वो काफी लोगों को पता था और हश हश में बातें होती थी और मैं बहुत फ्रेंडली था उनके साथ, और वो भी काफी मतलब मेरा ख्याल रखते थे। लाइक जो भी मुझे चाहिए होता था ज़रूरतें HR से, वो तुरंत मुझे मिल जाती थी और बाकी लोगों को नहीं मिलती थी। बाकी लोग मुझे ही बोलते थे अगर उनको कुछ चाहिए होता ना कि यार आज अपने जो अपार्टमेंट है उसकी लाइट नहीं आ रही है तो तू बोल, तो शायद तू बोलेगा तो जल्दी। तो मैं बहुत फन में लेता था, बट हाँ फाइनली जब मैं जा रहा था जॉब छोड़ के, देन ही टेक्सटेड मी, जो भी उनके दिल में था, और मैंने फिर उनको बताया कि नहीं मैं नहीं हूँ और वैसी बातें नहीं है, तो ऑल द बेस्ट। Would you be able to spend your married life happily if you find out that your wife to be is a lesbian? हाँ मुझे लगता है कि शादी एक टाइम के बाद बहुत मतलब कंपनी वाली चीज़ हो जाती है, दोस्ती वाली चीज़ हो जाती है, और तुम बहुत अलग लेवल का बॉन्ड शेयर करते हो। मुझे ऐसा फील आती है कि सेक्सुअलिटी से ऊपर बढ़ के कहीं शादी हो जाती है, तो दैट इज फाइन फॉर मी। Okay. अगर वो उनको मतलब there will be no physical relationship between you and your wife. हाँ फिर आई थिंक वो शायद ओपन रिलेशनशिप बन जाएगा एक टाइम के बाद, क्योंकि दोनों को ही वो डिज़ायर भी है और दोनों साथ भी रहना चाहते हैं शायद, तभी वो उन्होंने शादी की। अगर तो उस तरह के। Who's your current celebrity crush? सारा अली खान। Why? आई थिंक इंटेलिजेंस, मतलब जो जिस तरह से वो बात करती है, आई लाइक दैट। What do you sleep in at night? बॉक्सर्स, टी शर्ट। Your favorite cuss word? चूतिया। बहुत मुंह से बहुत निकलता है, बट हाँ इट्स नॉट A song that you like to sing in the shower? ऋत्विज का अभी नया जो गाना है लिग्गी, मतलब वो वर्ड्स काफी डिफरेंट है, तो वो गाने में मजा आता है। One book that you're reading currently? नथिंग, आई एम बैड रीडर। Something about you that not many people know? बेसिकली कॉलेज में बहुत इशू होता था कि मैंने राइट कान में बाली पहनी हुई है, विच इज एक्टिवली मतलब जो गे लोग होते हैं पहनते हैं, सो उनको डाउट होता था तो उनको बताना कि मैं नहीं हूँ गे। So I think you'll agree that आपको हराना बहुत मुश्किल है रैपिड फायर में, लेकिन I think he is having an edge. मेरे ख्याल से आप अग्री करेंगे। क्या बात कर रहे हो? नहीं, I think यहाँ पर सब लोग अग्री करेंगे चॉकलेट खाने दो, आप खाते भी नहीं हो। दे दो चॉकलेट। कि that he has कुछ नहीं, जीतू ऐसा कुछ खड़े नहीं, रह जाते हैं। कस वर्ड जो भी है बाकी ये लो। थैंक यू। कैसे कस्टर्ड बहुत इनका स्पंकी था। काफी मतलब Spike is better than fuck, you say. You want to say. देसी क्राउड के लिए हिंदी में ज़्यादा feel अपन तो देसी लोग हैं ना, मतलब Mainstream के लिए आपने जो खेला है, चूतिया बोला fuck की जगह, उसके लिए आपको अपन तो chocolate देसी मिली। लोग हैं ना। थैंक यू फॉर द चॉकलेट। थैंक यू। अब इनके जीतने के बाद आपके अंदर से फूट रही हैं। ये एक्सपेक्टेड ही था। फेयर, लेट्स बी फेयर, आप अग्री करो। Okay, so we'll end this in- बहुत एक इंसाइट मिली है जी। इंसान की। 5-second challenge with Ayushman and Jeetu. Ayushman, name 3 reasons why people should watch Shubh Mangal Zyada Savdhan. For normalizing gays, same-sex relationship. Number 2, entertainment. Number 3. We'll give 5 सेकंड में क्या बोलेगा आदमी यार? it. बोल सकते हैं। Let's give it to Jeetu now. Describe a perfect kiss in 3 words. Nothing is perfect, sir. It is. You guys have not opened the account. Sometimes a weird noise also comes out when you're kissing. It's like weird. So मतलब perfect क्या होता है sir? Perception. हर किसी का अपना हाँ, ठीक है. definition होता है। Imperfection is perfection. Yeah, exactly. 3 things that comes to your mind when I say Savdhan. Film Shubh Mangal Savdhan, music of a film, and entertainment. 1-0. So now Jeetu, it's your turn. 3 things that you love about Ayushman Khurrana. his style, his अच्छा ये मुझे नहीं बताना 3 बोलने के बाद। जल्दी बोल। His style, his jackets, his retro look। Okay, so you have to be quicker. 1-0 still. 3 most adventurous things you have done. Roadies, Shubh Mangal Savdhan, Shubh Mangal Savdhan. Done. 2-0. 3 male celebrity crushes. सारा अली खान, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण। Male पूछा है male. सॉरी। शाहरुख खान, अनिल कपूर
2-0. Let's give it to him. Which 3 famous persons would you like to be? Roger Federer, Sachin Tendulkar, and Michael Jackson. No, not Michael Jackson. Decide. Do you want that or not? Because you. Paul McCartney. But we can't give you the. Of course. 2-0. 3 things about you that no one knows. बहुत सारी चीजें पहला इंटरव्यू है सर इसका ये। Ayushman, name 3 things that you always forget. Date, and my house keys. Time out. 2-0. Name 3 reasons why everyone should marry. For friendship, for companionship, for 2-1. कुछ भी बोला है। 3 things that come to your mind when I say Bollywood. Entertainment, music, and dance. 3-1. The 3 most expensive things you have bought for someone else. सर I'll buy. इसके बाद वो एक्सपेंसिव चीज खरीदना शुरू करेगा। 3 things that you love about Jeetu, Ayushman. His silent charm, his acting skills, and his earnestness. 4-1. So you can redeem yourself now. Name 3 things that you do when no one is looking. Clean my nose. Come on, man. Okay, so you'll have to give this to Yes. Ayushman. Thank you, sir. Thank you very much for your time. Lovely having you guys, as always. And Ayushman, I have a request. If you can please sing a couple of lines from your song. तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी के जुड़ जाता है जैसे नदियों का पानी मुझे आके तेरे साथ बहना है जाना तुम्हें तो है ये बात जानी जिंदगी जैसे बनती सुहानी मुझे हर पल तेरे साथ रहना है तुम भी अधूरे से हम भी कुछ आधे आधा आधा हम दोनों जैसे मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी ये दुनिया मिले ना मिले हमको खुशियां भगा देंगी हर गम को थोड़ी खुदा से भी माफी हो मेरे लिए तुम काफी हो Wow. So thank you very much for your time and lovely having you guys on Bollywood Hungama and looking forward to the film for sure. Looks very, very interesting and thank you for doing what you're doing. Thank you, sir. All right, that's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching.